Hello students, I hope you are safe at your place. Today we are going to study about the very first unit of English pedagogy, functions of languages. In this today we are going to study about basic sound patterns. If we are dealing with the sound, if we are talking about the sound, so we must study about the very first thing in the sound, that is phonetic and the phonetic transcription. Now the question arises, what is phonetics? Phonetics is something that is called as the study of speech sounds in linguistic. Now what this linguistic word means? The linguistic means the study of any language, whether it is a Hindi, whether it is a English. So we are dealing with the English, so we are say linguistic is the study of language in which phonetics is the branch in which we are going to study of speech sounds. इसको हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, हमारे शब्दों को में से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को पढ़ना तथा उस ध्वनि को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, मिलजुल कर कैसे वो वर्ड बनाती है और उसको बोलने में हम किस तरह से उस वर्ड्स को, उस अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं, उस पूरे साइंस को, उस पूरी स्टडी को हम फोनेटिक्स बोलते हैं. So where the word comes from phonetics. Phonetics basically is a Greek word which means the sound or the voice. It is a science of the sounds of human speech. Someone who is expert in phonetics is called as phonetician. जो व्यक्ति phonetics की फील्ड को अच्छी तरह से जानता है, जो phonetics को हर तरह से करना जानता है, ट्रांसक्रिप्ट करना जानता है, उसे हम phonetician बोलते हैं. And the study of the whole this wordings or the speeches and all that is called as the phonology. As the zoology, psychology, इस तरह से इस फील्ड को भी हम फोनोलॉजी बोलते हैं, जिसे हम साउंड सिस्टम्स या यूनिट बोलते हैं. सो फोनेटिक्स इज व्हाट? सिंपली फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, like how we are going to pronounce a particular word with the help of different alphabet and with the help of different sounds. Like first of all, take the example phonetics. So we are not going to pronounce it phonetics, it is a phonetics. Okay. As now we are going to take the example of the phonetics. Now what is a phonetics? It is something that is a blueprint of sound. As you make the blueprint of the any architecture, as you make the blueprint of your question paper, in the same way the phonetics is something that is a blueprint of sounds, where you are going to give the stress on the particular alphabet, where you are going to give the how you are going to pronounce a particular word, and how the word is a mixture of different sounds. This all deals with the phonetics. That is, simply we can say that is a blueprint of sounds. Like phonetic, here as we say here the consonants also and the vowels also. P, H, it is a consonant. O, vowel, and then again consonant. E, vowel. T, consonant. I, vowel. C, consonant. So it is a mixture of this word is a mixture of the consonant and the vowel. But how we are going to pronounce this word? Okay, we are going to pronounce it like this: phonetic. हम इसमें किस चीज़ों पे स्ट्रेस दे रहे हैं? यहाँ पे पी साइलेंट है, हम इसे फ मिलके बना रहे हैं फ. यहाँ पे ओ के कहीं पे भी हमने गुंजाइश नहीं रखी है. इट मीन्स ओ इज़ व्हाट? ओ इज़ अ साइलेंट. हम यहाँ पे ओ नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे फेनेटिक बोल रहे हैं. इट मीन्स हम इसको 3 सिलेबे में बांट रहे हैं. अगर हमने इसको बांटना हो तो एक सिलेबे तो ये हो गया फ, एक ये हो गया न, और एक ये हो गया टिक. phonetic. So where is the O comes from? So what is the function of O in this? It's just a silent in this. There is a no sound of O, but this word is a mixture of the consonant also and the vowel also.
here the vowel, where we are stressing this vowel sound, phonetic. Okay, now this all deals with this study where we are going to stress the some sounds, how we are going to pronounce the words. It's all deals, its study is called as the phonetic. It's just simple like the study of speech sounds. Now the example of phonetics. Here I am going to take a word bat. As you can say, example of phonetics, how the letter B in the bat is spoken. You start out with your lips together. आप किस तरह से इस बैड वर्ड को बोलेंगे? अगर मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए, बैड. यू स्टार्ट आउट विद योर लिप्स टुगेदर. सबसे पहले हम अपने दोनों लिप्स को मिला लेंगे. ब, उसके एक साउंड आएगी, वो है ब. देन एयर फ्रॉम द लंग्स इज फोर्स्ड ओवर योर वोकल कॉर्ड्स, यानी कि आपको फेफड़ों में से आप लंग जो हवा है वो बाहर निकलेगी, यानी कि आप स्ट्रेस दे रहे हो उस वर्ड ब. वोकल कॉर्ड्स यानी कि ध्वनि, जो हमारे गले में जो ध्वनि के जो होते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं जिन्हें, हिंदी में तो मुझे नहीं मालूम है, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं जिससे आपकी ध्वनि निकलती है, जो वो है ब. विच बिगिन टू वाइब्रेट एंड मेक नॉइस. The air that escapes from your lips as they part suddenly, which results in the sound b. So bad, bad. So here again we are having the consonant and vowel, but we are giving the stress between the bad d. So आप यहाँ पे बोलने पे, अपने उच्चारण करने पे आप पाएंगे कि आप विभिन्न अपने मुख का विभिन्न होस्ट दंतक आपको मालूम होगा इस तरीके से. सो हम उस चीज़ को यूज़ करके हम प्रोनाउंस कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज फेनेटिक, बैड. सो यहाँ पे हमने एक पहले चीज़ अक्षर को पकड़ा, बी को पकड़ा. बी को हम किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरह से स्ट्रेस दे रहे हैं, किस तरह से मुख से आपकी ध्वनि निकल रही है. आप जब दोनों होठों को मिलाते हैं तो जो ध्वनि निकलती है ब ब करके देखिए आप, तो वो साउंड जो है वो बी का साउंड देती है. तो ऐसे हम विभिन्न तरह के साउंड पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सोनेंट वोवेल के साउंड पढ़ेंगे, और यही अध्ययन ये है वो फेनेटिक्स कहलाती है. नाउ हिस्ट्री ऑफ फेनेटिक्स. 19th सेंचुरी में समझा गया कि हमें भी ध्वनियों को, या ये शब्दों के अंतर्गत हमें भी ध्वनियों को हमें भी पढ़ना चाहिए. Okay, so in 19th century there is a firm that is called from British accent that is called as IPA. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RPSC का भी है कि फेनेटिक्स जो है वो किसके अंतर्गत आता है. वो है इंटरनेशनल फेनेटिक एसोसिएशन. पहले ये एसोसिएशन था, अब ये अल्फ़ाबेट हो गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फेनेटिक्स under the association that is called as the International Phonetic Alphabet, IPA. इसे 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था. एज वी नो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन एसेंट. सो इंग्लिश जो है वो डिफरेंट एसेंट यानी कि हम किस तरह से किसी चीज़ को बोलते हैं. एसेंट हम किस चीज़ से, हम कहीं पे ब्रिटिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम कहीं पे ब्रिटिश एसेंट यूज़ करते हैं, कहीं अमेरिकन एसेंट यूज़ करते हैं, और हमारी जो इंडियन इंग्लिश है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस जो है वो ब्रिटिश एसेंट का इन्फ्लुएंस लिए हुए है. अमेरिकन के किस तरह से डिफरेंट है और ब्रिटिश किस तरह से डिफरेंट है. एज यू कैन सी द मेज़, भुट्टा जिसे बोलते हैं, अमेरिकन में मेज़ बोला जाता है, और ब्रिटिश में एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्न, और हम भी उसे कॉर्न ही बोलते हैं इंग्लिश में, CORN, कॉर्न. तो इस तरह से डिफरेंट हम एक्सेंट यूज़ करते हैं बोलने में. सो वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद द ब्रिटिशर्स एक्सेंट. उसका रीज़न आपको मालूम ही है कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर हम बहुत टाइम तक रहे हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द फोनेटिक्स. हम बचपन से एक ही चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP. इसमें से आपको 26 लेटर्स पढ़ाए गए हैं. सो हियर द 26 लेटर्स. इसमें से जो 5 हैं वो वॉवेल साउंड्स की तरह से अलग कर दिए गए, जिसे हम वॉवेल बोले. सबसे पहले बात तो वॉवेल साउंड्स. हियर आई एम गोइंग टू दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस वॉवेल. From the very beginning, the teacher taught us to pronounce vowel. That is not vowel, that is vowel. It is called as the vowel.
So here we have the 5 vowels A, E, I, O, U. हम vowel नहीं बोलेंगे, हम vowel बोलेंगे. So here are the 5 vowels E, A, E, I, O, U and rest of the consonants. We all know this, हमें ये सब मालूम है कि consonants और vowels होते हैं. Then in consonants और vowels यानी कि 26 letters को मिलाकर total 44 sounds निकल रही हैं. हर एक वर्ड में हम जो वर्ड बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत 44 साउंड्स हमें मिल रही हैं. अब इस 44 साउंड्स का हमने अलग अगेन क्लासिफिकेशन कर दिया है एज पर द फोनेटिक्स. फर्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन करा, हमने वाउल बेसिस पे करा. 20 हमें वाउल साउंड्स मिल रही हैं. सोचिए, इन 5 वाउल से हमें 20 वाउल साउंड्स मिल रही हैं. एंड ये कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हमें 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स देते हैं. इससे मिलके हमारी पूरी लैंग्वेज है वो तैयार हो गई है. Okay, 20 vowel sounds and the 24 consonants sounds. So in short we can say what is vowel and the consonants. Now you are coming a bigger in a higher studies, you are going to study about that they are not merely the symbols but it is a sound. They are sounds, they are not a symbols. Okay, ABCD ये symbol नहीं है, ये sounds हैं. So in 26 letters we are having the 44 sounds. And now this 44 sounds again classified into 20 vowel sounds and then again 24 consonant sounds. Now in next we are going to study what is vowels and what is consonants. Here vowels and the consonants. Vowels and the consonants are sounds, not letters. The letters B, C, D, F, J and so on and Z used to spell the consonants, and the letters A and O mainly used to spell vowels, and the letter E, G, H, I, L, R, U, W, Y are used as in spelling representing both vowels and the consonants. So we can say that each and every spelling is made up of vowels and the consonants. Okay, here some spellings are there, some words are also there in which vowels are not there, like by. Like by. Here the vowel are not there. Okay, my. Okay, but in this what happened, the Y is the letter are used in spelling represent both vowel and the both as in spellings representing both vowels and the consonant. Somewhere the Y is representing as a vowel in this. Okay, so here the vowel और consonant का जो खेल है, जो डिफरेंट साउंड्स देता है और डिफरेंट वर्ड्स को बनाता है इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाउल. यहाँ पे वाउल है कहीं भी नहीं एम वाई और बी वाई में, बट साउंड इज देयर बिकॉज ऑफ दिस वाई. आई होप यू अंडरस्टूड. Now here you can see the classification of English speech on vowels and the consonants. अब इसका बीच का basic difference देख लेते हैं. The basic difference between these two classes is that in the production of the former का मतलब है पहले वाला कौन सा है, vowels. The air stream meets with no obstruction of any kind in the throat, the nose, the mouth. ओके, मतलब कि ये जब ए ई आई ओ यू आप बोलेंगे, उसके बीच में जो हवा निकल रही है आपके मुंह से या फिर आपके लंग से, बेसिकली वहाँ पे आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पाएंगे. आप बोल के देख सकते हैं इसमें ए आप अगर बोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा. यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कहीं भी रुकावट नहीं हो रही है. आप बोल के देख सकते हैं ए, एकदम से ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है ई आई ओ यू. यहाँ आप देखेंगे कहीं भी आप ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन जब आप अदर देन कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे आपकी कहीं ना कहीं ध्वनि रुकेगी बी एच. आप देखेंगे आपके या तो टंग के आपके लिप्स के बीच में या टीथ के बीच में आपकी कहीं, ये भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कौन से वर्ड्स का कौन से माउथ के पार्ट से निकलते हैं, उनके अनुसार भी क्लासिफिकेशन है. तो इट्स अ वास्ट टॉपिक फोनेटिक्स, बट आपके जो कोर्स में हम वही इसमें कवर
करेंगे. सो here you can see the basic difference between the two classes. मतलब कि अब वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या डिफरेंस आप कह सकते हैं. जब आपके मुंह से ध्वनि निकलती है बिना किसी रुकावट के निकलती है, यानी कि आप उस वक्त जो है वो वाउल पढ़ रहे होते हैं या वाउल का उच्चारण कर रहे होते हैं. लेकिन जब आपकी ध्वनि ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, कहीं ना कहीं रुकावट के साथ निकलती है, तो आप वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंस कर रहे होते हैं. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. अब हम एक बार गो थ्रू हो जाते हैं पूरे टॉपिक से. हमने बेसिक साउंड पैटर्न्स के अंदर फोनेटिक्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है. धीरे धीरे हम इसको आगे ले जाएंगे टॉपिक को. यहाँ हमने पढ़ा कि लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है और फोनेटिक्स है वो स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स है. अब आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि फोनेटिक्स है क्या. जब हम अपने शब्दों को निकलने वाली ध्वनियों का अध्ययन करते हैं उसे हम फोनेटिक्स बोलते हैं. ये फोनेटिक्स नहीं है, ये फोनेटिक्स है. सेकेंडली फोनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हम साउंड और वॉइस बोलते हैं. और जो ये इसका एक्सपर्ट होता है, जो फोनेटिक्स की फील्ड को अच्छी तरह समझता है, उसे फोनेटिशियन बोलते हैं. और जो पूरी स्टडी होती है, जो पूरा ये ब्रांच होता है स्टडी का, उसे हम फोनोलॉजी बोलते हैं. फोनेटिक्स है क्या, मैंने बताया था ये ब्लूप्रिंट ऑफ साउंड है. जिस तरह से हमने इसको टुकड़ों में बांटा है फोनेटिक्स, जिस तरह से हमने विभिन्न ध्वनियों के अनुसार ये फोनेटिक शब्द मिल बना है, वो हमने समझा था. उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हम एक वर्ड को स्ट्रेस दे के, जैसे ब, किस तरह से वो हमारे मुख से निकल रहा है और हम कहाँ उसे स्ट्रेस दे रहे हैं, कैसे ध्वनि निकल रही है हमारे मुख से, ये हमने एग्जाम्पल लेके समझा था. और इस पूर्ण अध्ययन को ही फोनेटिक्स बोलते हैं. देन फोनेटिक्स आया कहाँ से, ये एक फर्म से आया, एक एसोसिएशन से आया जो कि 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस की गई थी. सो हमारी जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस्ड है. सो ब्रिटिशर्स से रिसीव्ड इंग्लिश है हमारी, और इसको बोलते हैं IPA यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. पहले इसको IPA एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था. Now classification of phonetics, we know there are 26 letters in the alphabet in which 5 are vowels and rest of the consonants. ये 26 letters जो है 44 साउंड्स बनाते हैं, जिसमें से 20 vowel साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स हैं. आगे हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स होते क्या हैं. यहाँ पे आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कॉन्सोनेंट्स कौन से और वाउल्स कौन से. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट्स वाउल्स क्या हैं. सिम्बॉल्स हैं, बट दे आर नॉट द सिम्बॉल्स, बेसिकली दे आर द साउंड्स. जो डिफरेंट साउंड्स मिलके एक वर्ड का निर्माण करते हैं. ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. हमने सबसे पहले बेसिक चीज़ ली है वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स की. यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 क्लासेस मैंने बताया था. सिंपल हम वे में कैसे बता सकते हैं कि ये वाउल है और ये कॉन्सोनेंट्स है. वाउल बोलने पे हमारे कहीं पे भी रुकावट नहीं आती है बोलने में. आप इजीली बोल के देख सकते हैं AEIOU. लेकिन हम वाउल लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा. यहाँ वर्ड जो लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ. और दूसरी चीज़ एयर स्ट्रीम, मतलब कि जो आपकी एयर निकल रही है, मुख से जो एयर निकल रही है, लंग से जो एयर निकल रही है, कहीं ना कहीं वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है. So these are the difference between the vowel and sounds. Now in very next topic we are going to study about the monophthongs and the diphthongs, that is the vowel sounds. Thank you and have a nice day.